इमरान साहब, आप मीर पर तशरीफ़ लाए। बड़ा मुख्तसर सा दौरा आपका पाकिस्तान का, इस्लामाबाद में भी रुके और मीर पर में भी आए। तो मकबूजा कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, तो पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो सरापतजाज हैं। तो बरतानवी पार्लियामेंट में बैठे हुए आप लोग जो है वो कश्मीर की आवाज़ हैं और आपने बहुत कोशिश की इससे पहले भी। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आप क्या सोचते हैं कि कश्मीर इशू जो है इस वक्त किस पोजीशन में है? Again, like I've been saying throughout this visit, firstly, can I thank the government of Pakistan and Azad Kashmir for facilitating this very important visit that has been short but very constructive and informative in terms of the ground reality of some of the issues at play here. But this is a flashpoint. Let's make no mistake where we are in the journey of Kashmir. This is a flashpoint, and the illegal way in which the Article 370 and 35A has been revoked has such a detrimental impact on the Kashmir cause that words cannot describe it. Taking away the special status and also taking away the rights that are currently quite rightly enjoyed by the sons and daughters of Kashmir as a occupied territory are all going to be stripped. But the most imminent situation is the blockade that ensues there at the moment, and I have been shocked to learn that up to 10,000 people have been arrested under the Draconian Public Safety Act, this act that is in direct contravention of international law, and in reality that means those 10, and that's on away from the political leaderships that have been placed under house arrest. But this effectively means that those people will not face any charge, will not have the right to due process, and will not be allowed to a fair trial. That is shocking on its own. However, the humanitarian situation, as I'm learning, the limited information we are getting from briefings, although the full picture is not known because of the nature of the blockade, a blockade the United Nations described as no other blockade that they have seen. This truly is draconian, and we are seeing the curfew means that people are allowed out of their houses for a relatively short period of time. There is a massive shortage of food and medicine where people are facing serious issues such as health problems, starvation, various other issues. The international community cannot ignore this. This situation is at such a point now where we demand that the international community must condemn very forcefully the actions of the Indian government. There must be an end to the blockade. There must be a reversal of this revocation of Article 370 and 35A and the United Nations resolutions, which is the firm footing. And whilst people say this is a bilateral issue, of course, but the international community must now bring together a solution to this issue. And the only solution is the sons and daughters of Kashmir to determine their own destiny. इमरान साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे से आप लोगों की कोशिशों की वजह से अब ये हुआ है कि जहाँ बरतानिया में मुसलमान जो है वो सरापतजाज थे कश्मीर के हवाले से, अब वहाँ में जो सिख कम्युनिटी है, ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, जो गोरे लोग हैं, वो भी इस पे सरापतजाज हैं। तो ये आप लोगों की कोशिशों से हुआ है। आप थोड़ा सा ये वजाहत करेंगे कि बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से किस हद तक जो है ना वो इकदाम कर रही है, या क्या किस हद तक वो है इंटरेस्टेड है कि कश्मीर इशू जो है उसको सॉल्व किया जाए? Again, let's be absolutely clear. This is an issue of international human rights violations of the gravest type. This is an issue of international injustice. And all good people of many different faith communities, certainly in the UK, look, you've seen some of the biggest demonstrations in this area. ये ब्रैडफोर्ड में मेरे थोड़े जिस दिन मैंने आना था उस दिन demonstration हुई, क्योंकि मुझे तो यहाँ आना था, so unfortunately I couldn't attend it. लेकिन उसमें 5,000 से ज़्यादा बंदे थे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी बंदे ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया। वो एक ग्रास रूट्स का इनिशिएटिव था। इसी तरह से लंदन में आपको रिपोर्ट्स मिली होंगी कि 20,000 से ऊपर बंदे स्ट्रीट्स में वहाँ पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया। सो दीज वी आर सीइंग अ रियल ग्रास रूट्स मूवमेंट डेवलपिंग, एंड उसमें हर रंग के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, छोटे लोग हैं, बुजुर्ग बंदे हैं, देयर आर मेल्स, फीमेल्स, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन दैट बिकॉज इट इज एन इशू ऑफ इनजस्टिस एंड वी ऑल हैव एन एब्सोल्यूट ड्यूटी टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। एज फार एज जहाँ तक यूके गवर्नमेंट का पोजीशन है अगेंस्ट, आई नेवर, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि यानी कि एक साइड कहे दूसरी साइड को, दिस इज़ अ इशू। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप में हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हैं, यानी उसमें जो आपकी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके एमपीज़ हमारे साथ हैं। इसमें हुकूमत का कुछ अरसे से
मुख्तलिफ हुकूमतों का ये इसमें रहा है कि दिस इज़ अ बायलैटरल इशू। आप क्या समझते हैं जो हमारे बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, मिडल ईस्ट में हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ कभी खड़े थे, मौजूदा सूरत हाल में क्या समझते हैं, उनका रोल क्या है? और इसके अलावा जो अमेरिका का किरदार है, OIC में जो हम लोग सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, उसका कोई आउटपुट होगा, कोई कश्मीर इशू को उसका कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, लाइक आई सेड बिफोर, एवरीबडी, यानी या तो आप यूनाइटेड नेशंस जनाब ख़त्म कर दें, सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त्म कर दें, यानी अगर है, देयर इज़ अ रीज़न वी हैव अ यूनाइटेड नेशंस, देयर इज़ अ रीज़न वी हैव अ सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज़ टू जब इस किस्म की इनजस्टिस होती है, जब इस किस्म का मसला होता है, सो दे हैव ए जॉब टू डू, और उसमें हम वेलकम करते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, लेकिन द सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट गो फर्दर। मैंने पहले ये बात कही थी कि द यूनाइटेड किंगडम टेक्स द प्रेसिडेंसी ऑफ दैट सिक्योरिटी काउंसिल इन नवंबर। वी विल कंटिन्यू टू पुश आवर गवर्नमेंट टू टेक अ मच firmer stance, that is what we can do. जहाँ तक बाकी के मुल्कों का, I don't like to single out कि यानी इस मज़हब के मुल्क, उसमें बात यह है, it's about injustice. So all countries, जितने मुल्क हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। या तो वो कहें कि ठीक है जी यहाँ जुल्म और सितम हो रहा है, हमें कोई परवाह नहीं, या तो कहें अगर नहीं तो फिर कंडेमनेशन दें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा, ये जो हमने देखा कि ये अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को UAE में, I think they should have really reconsidered that decision in light of this recent thing. However, इस यानी कि this is a, मैंने पहले बात कही थी कि इस हुकूमत, ये जो इंडियन हुकूमत है, इसका एजेंडा जो है वो बहुत गलत किस्म का एजेंडा है। This is an RSS ideology that is age old, and people should really, I have to say, it is disappointing to say the least, somebody of that stature is receiving an award. मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट और शैडो मिनिस्टर फॉर जस्टिस बैरिस्टर इमरान हुसैन चौधरी, जो कि आज अपने आबाई इलाके के मुख्तसर तरीन दौरे पर थे, आज बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन उन्होंने गुजारा। इस वक्त वो अपने आबाई घर में मौजूद हैं और आज यहाँ पर अवाम इलाका की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इंतज़ामिया के अफसरान भी और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे, उनको सुनने के लिए आए हुए थे। बैरिस्टर इमरान साहब से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर के हवाले से उनकी कोशिशें पहले से बहुत उन्होंने तेज़ कर दी हैं और वो भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो कोशिशें कर रहे हैं इससे बहुत जल्द मसला कश्मीर जो वो हल होगा और इंशाल्लाह हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी मिलेगी। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि कश्मीरी हमारे जो बहन भाई हैं वो आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेंगे। बरतानिया पार्लियामेंट में बैठे हुए ये हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इनकी कोशिशों से अब तो ये मुमकिन हुआ है कि जहाँ पर मुसलमान सरापाजात थे, इनके साथ भी जो बाकी कम्युनिटीज़ के जितने भी वो सारे लोग वो कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इनकी कोशिशों से आज ये मसला कश्मीर जो है वो फ्लैश पॉइंट बन चुका है और यकीनन जो है ना वो बरतानिया गवर्नमेंट भी अब मजबूर हो चुकी है और तमाम लोग जो हैं वो कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासर।